Hello, good morning students. Welcome back to our science class. In today's lecture, we are going to start one new chapter. That is chapter number 3, water. क्या name है lesson 3 का? Water. Yes, water. Students आप सबको पता है water means what? Okay, water कौन सी जगह में यूज होता है? In day to day life पूरा दिन हम वाटर यूज करते हैं फॉर वॉशिंग हैंड्स, वॉशिंग फेस, क्लोथ्स, ओके, फॉर ड्रिंकिंग वाटर. अनलिमिटेड यूजेस ऑफ वाटर आर देयर. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो आवर अर्थ, आवर प्लैनेट अर्थ कंटेन्स वाटर बॉडीज आल्सो. ओके, तो हमें वाटर कहाँ से मिलता है? हाउ डू वी गेट वाटर? द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, yes, anyone can answer what is the main source of water? The main source of water is rain. So in this lecture we will discuss these 4 points related to the water. Okay, recall is given in your book on the page number 202. Okay, you can see here the green box is given to you. Let's recall. Here, water vapor rises and forms cloud. The clouds bring rain. हमने पहले बोला the main source of water. Water का main source कहाँ से है? Rain से. Now how does rain will come here? Okay, so water vapor जो sun की वजह से water vapor rise होते हैं, they will form a cloud over there, and then this cloud will burst and into the form of the rain. Okay, then next point is rainwater flows to form a small stream. Rainwater जो flow होती है small streams में वो चली जाती है. Then streams, ये जो river है, ये जो stream है, rainfall से जो हमें water मिला है वो कहाँ जाता है? Yes, this water is collected into the ponds, lakes, rivers of that particular region. जहाँ पे rainfall हुई है वहाँ पे. ठीक है? Then what happened? Some of the rainwater seeps into the ground and some changes into the water vapor. अभी ये जो ग्राउंड पे रेनफॉल हुआ है वो पानी आधा पॉन्ड्स में, रिवर्स में चला गया. Some water soil will soak that water. Okay, then that unremained water on the surface of the land surface पे जो water unused ऐसे ही रहेगा. Some that water will be again, वो water क्या होगा? Water vapor बन जाएगा और convert into water vapor, and then water vaporize over, and again the cloud formation will take place. Okay, this is the water cycle. Now our second point in this topic we will learn is amount of fresh water. How much amount of fresh water is there on our planet Earth? Okay, then we will learn the uses of water, and lastly we will learn how does the water reach at home. हमारे घर पे water कैसे, क्या stages से पास होके हमारे घर पे water आता है, जिससे हम पीने के लिए, ड्रिंक के लिए यूज होते हैं, घर के हम डिफरेंट काम करने के लिए हम जो वाटर यूज करते हैं वो हम तक कैसे आता है. We will learn this all topics in today's lecture. So students, let's begin our today's lecture from our book. Now students, look at the picture and list 10 activities that can carried out at home using water. Okay students, यहाँ पे आपको images दी है. Look at these images and write the name of the activities that is carried out at home using the water. Okay, list the 10 activities. Now let's recall what we did. Now I have explained the formation of the clouds. Water vaporizes and then the cloud is formed, and then the clouds blast and in the form of the rain. Then rain water comes to on the land. Okay, then this water passes through the small streams into the lakes, ponds, river of that particular
region. Then some water is soaked by the soil and some changes into the water vapor, and again the same process is repeated. Okay, now moving further, students, we all know that all living beings needs water to live, to survive. Okay, so our planet Earth, 3/4 of the Earth is covered with the water. हमारा जो planet है Earth, उसका कौन सा कितना पार्ट, 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ किससे कवर्ड है, वाटर से. ऑन एंड ओनली द रिमेनिंग 1/4 इज लैंड. कितना पार्ट है, 1/4 ही सिर्फ लैंड पार्ट है. दैट इज वाई द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लानेट. इसीलिए हम अर्थ को कौन सा प्लानेट बोलते हैं, ब्लू प्लानेट. आप अर्थ की इमेज देख सकते हो, मोस्टली पूरा एरिया ब्लू कलर का होगा. वाई, दैट ब्लू इंडिकेट्स दैट दिस पार्ट ऑफ द अर्थ कंटेन्स दी वाटर बॉडीज, है ना. सो ओशन, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स एंड वेल्स, आइस इन द पोलर रीजन एंड माउंटेन टॉप कंटेन वाटर, है ना. Now amount of fresh water, most of the water, that is 97.5% found on the earth is in its ocean, which is salty. हमारे ओशन में जो वाटर होता है वो कैसा होता है, salty. And how much it is, 97.5%. Okay, now the salt water cannot be used for the household use like drinking, growing crops or in industry. ये जो salt water है वो household purpose के लिए हम use करेंगे, no, we cannot drink salt water. Yes, crops growing के लिए भी salty water हमें नहीं चाहिए. So the remaining water on the earth is fresh water. 97.5% है वो कैसा वाटर है, ओशन का है. ठीक है. नाउ यू ऑल नो दैट ओशंस वाटर इज सॉल्टी, सो एंड सॉल्ट वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पज. सो द अमाउंट, द रिमेनिंग अमाउंट मीन्स 100 में से 97.5 इतना है, तो कितना अमाउंट बचा आप सोच सकते हो, उतना ही % फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ पे, है ना. Now, most of the fresh water on the earth is found in its glaciers and ice caps and the ground water. Now students, where did we find fresh water? Fresh water on the earth is found in its glaciers, ice caps and ground water में से हमें fresh water मिलता है. बाकी सारा पार्ट कैसा है, ओशन का, वो की सॉल्टी है. यू कैन सी हियर दिस स्काई ब्लू कलर इज अ फ्रेश वाटर. ये पूरा हमारा अर्थ है, 97.5% वो कैसा है, ओशन का पानी है, मीन्स सॉल्टेड वाटर है. दिस पार्ट, रिमेनिंग पार्ट कंटेन्स दी फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर में क्या होता है, कहाँ होती है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर में हमें फ्रेश वाटर मिलता है. समझ में आया? यस. नाउ ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस. ग्लेशियर्स क्या है, आइस यानी कि बर्फ की रिवर्स है, आइस रिवर है. एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड्स आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ थिक आइस नोन एज आइस कैप्स. ओके, हमने दोनों पोल्स देखे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. यस, दोनों पोल पे क्या है, आइस कैप्स हैं. लार्ज एरिया इज कवर्ड विद द थिक आइस लेयर. आइस की लेयर से वो पूरे कवर्ड हैं, उसको बोलते हैं आइस कैप्स. ठीक है. दिस फ्रोजन वाटर ऑल्सो कैन नॉट बी यूज बाय अस. ये जो फ्रोजन बर्फ एकदम आइस है, दिस फ्रोजन वाटर हम यूज कर सकते हैं, नो, इट कैनॉट बी यूज बाय अस डायरेक्टली. एंड ग्राउंड वाटर इज द रेन वाटर दैट कलेक्ट्स डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ.
नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज ग्राउंड वाटर? जो हमारा अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस उसकी डीप में कलेक्ट करके रखता है वाटर, दैट वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. द वाटर वी ड्रॉ फ्रॉम वेल, बोरवेल्स एंड ट्यूब वेल्स इज ग्राउंड वाटर. आप देख सकते हो वेल, बोरवेल से जो हम पानी निकालते हैं, वी यूज दैट वाटर, दिस वाटर कम्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. ओके, आई होप नाउ the concept of what is groundwater, what is ice cap and glaciers are clear to you. This is the definition of the glaciers. Glaciers are the rivers of ice. Now what is ice caps? At the poles of the earth, अर्थ के दोनों पोल्स पे जो लैंड का लार्ज एरिया है वो आइस की थिक लेयर से कवर्ड है, उसको आइस कैप बोला है. एंड द ग्राउंड वाटर विच इज collected deeply below the surface of the earth, that is called ground water. Okay, these are the various sources of water, you know. Okay, this rivers, oceans, this ice, glaciers, this well, these all are the various sources of fresh water. Okay, now of the remaining 1% fresh water on the earth, about half is on the surface in the lakes and rivers. All land animals and plants depends on this small amount of fresh water. आप देखो यहाँ पे कितनी है रिमेनिंग अमाउंट, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. 1% ही वाटर है फ्रेश वाटर अर्थ पे, उसमें से हाफ इज ऑन द अर्थ सरफेस इन द लेक्स एंड द रिवर्स. That fresh water is used by the animals and plants. Okay, such a small amount of fresh water is used by animals and plants. Now you can imagine our land, our planet earth, which is fully covered with the water. Okay, now you can imagine the fresh water, amount of fresh water on the earth. Okay, let's move further. Now uses of water. You are all are aware with the uses of water, so let's recall कि हम water कहाँ कहाँ use करते हैं. Water is used in homes, industries, for agriculture, to produce electricity and for recreation in water parks. Water कहाँ पे use होता है? Yes, home में, industries में, agricultural में. एग्रीकल्चर में कैसे? क्रॉप्स का प्रोडक्शन के लिए. ओके, नाउ सेकेंडली टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज द वाटर. यस, एंड फॉर रिक्रिएशन इन दी वाटर पार्क्स. ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी दिस ऑल पॉइंट्स इन डिटेल. फर्स्ट पॉइंट वेयर द वाटर यूज्ड इज होम्स. ठीक है, वाटर इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस. We all know that in our day-to-day life we use water. It is used for cooking, drinking, bathing, washing clothes, flushing toilets, watering plants. We mainly depend, ये water हम लोग कितना use करते हैं. ठीक है, you can see here. We can mainly depend on rivers, wells and ground water sources for drinking water. Drinking water की sources क्या है? पीने का पानी आपको कहाँ से अवेलेबल होता है? तो वी मेनली डिपेंड्स ऑन रिवर्स, वेल्स एंड ग्राउंड वाटर. दिस 3 आर द सोर्सेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर. नाउ डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर सो दैट द वाटर डज नॉट फ्लो अवे इनटू द सी. रिवर पे मोस्टली डैम्स बनाते हैं. क्यों डैम्स जब फ्लड आए या बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो तो वो सारा वाटर सी में ना चला जाए. Okay, water from dams or lakes is taken to storage tank and purified. ये जो रिवर है और डैम से ये पानी हम लोग लेते हैं टू स्टोरेज टैंक्स एंड प्योरीफाई, उसको प्योरीफाई करके टैंक में स्टोर करने के लिए. द क्लीन वाटर इज पम्प्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स टू द डिफरेंट लोकेलिटीज इन आवर सिटीज एंड टाउन्स. नाउ स्टूडेंट्स, मुझे बताओ तो आपके घर में हर नल में पानी आता है? यस, कोई नल होता है जिसमें पीने का पानी होता है, किसमें से आप यूज़ करने का पानी लेते हो. डेली मॉर्निंग में पानी आता है,
ओके हर घर में सेम टाइम पे आता है? यस, एरिया वाइज डिपेंड्स है टाइम। तो वो कैसे पॉसिबल है? और वो ऐसा है कि पानी गंदा आता है? नहीं, प्योरीफाइड वाटर आता है आपके घर पे। तो हाउ डज इट पॉसिबल? वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि रिवर्स और लेक्स में तो क्लीन वाटर इतना नहीं होता है कि हम उसको ड्रिंक कर सके। यस, तो ये जो प्रोसेस है, चलो देखते हैं ये प्रोसेस कैसी है। हाउ डज दिस वाटर रीच योर होम? तो फर्स्ट इज, तो ये जो आप देख रहे हो ये रिवर से रेन आई और रिवर में वाटर कलेक्ट हुआ है। द वाटर वी यूज इज मोस्टली कम फ्रॉम द रिवर और लेक। ओके, जो वाटर हम यूज करते हैं मोस्टली वो कहाँ से आती है? रिवर और लेक्स में से। सेकेंडली, ये जो रिवर और लेक्स या डैम में वाटर का स्टोर होता है वो सीधा कहाँ जाता है? वाटर टैंक्स, लार्ज टैंक्स में। ये आप देख सकते हो, ये नंबर 2 है, टैंक्स में हुआ store. Then this water is filtered, dirt is removed from the water. आप देख सकते हो पाइप के थ्रू टैंक में गया, टैंक के थ्रू यहाँ पे वाटर फिल्टर हो रहा है, उसमें से डर्ट्स निकाल रहे हैं। देन फर्दर, फोर्थ पॉइंट, वाटर इज स्टोर्ड इन अ टैंक एंड क्लोरीन इज एडेड। वाटर एक टैंक में डर्ट रिमूव करने के बाद वाटर कहाँ? एक टैंक में स्टोर किया। एंड फोर्थ पॉइंट में क्या ऐड किया वाटर में? क्लोरीन, जो कि एक केमिकल है, वो हमने उसमें एक ऐड किया। ठीक है, अभी क्या होगा? वाटर इज टेस्टेड टू चेक इफ इट इज फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। क्लोरीन ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फिफ्थ प्रोसेस क्या है? वो वाटर चेक करते हैं कि वो ड्रिंक के लिए प्रॉपर है कि नहीं, उसमें से डर्ट्स एंड जर्म्स रिमूव हुए हैं कि नहीं। ओके, देन सिक्स्थ प्रोसेस गोज टू द प्यूरिफाइड वाटर टैंक. Again there is a tank which contains the water which is free from the dirt and germs. रिमूव करके वो फर्दर प्रोसेड होके एक टैंक में स्टोर करेगी एंड फाइनल प्योर वाटर वी गेट। एंड दिस प्योर वाटर is passed to the different homes through a network of pipes. different network of pipes के थ्रू ये वाटर आपके ऑफिस, स्कूल, होम्स सब तक सप्लाई होता है। These 7 steps were there of how does water reaches our home. Okay, I hope these points are clear to you. This way we get the water to use at our home. Now another use of water is at agriculture. कहाँ है दूसरा वाटर का यूज? एग्रीकल्चर में। A large quantity of water is used to irrigate crops. क्रॉप्स की ग्रोइंग करने के लिए हमें इरिगेशन वाटर फैसिलिटी हमें चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर फॉर इरिगेशन, टाइम टू टाइम सारे क्रॉप्स को वाटर चाहिए टू ग्रो। ओके, सेकेंडली it is also used in the industries. Water is used in manufacturing cars, plastic, paints, fertilizers, chemicals, leather, cement and fabric. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप उसका प्रोडक्शन करो और वहाँ पे वाटर की ज़रूरत नहीं पड़े। वाटर इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो इन प्रोडक्शन ऑफ दिस, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ऑल वी नीड दी वाटर। ओके, सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। फ्लोइंग वाटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्लोइंग वाटर बोला है। विच वाटर? नॉट अ स्टेगनेंट वाटर, इट्स अ फ्लोइंग वाटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये जो फ्लोइंग वाटर है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. Our country has many hydroelectric power station located on the big dams. Generally ये hydroelectric power station जिसमें वाटर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन. एंड दीज are mainly located on the big dams. Okay, समझ में आया? Here you can see. ठीक है, बिग डैम्स है
वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन होता है टू कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू दी इलेक्ट्रिसिटी. नाउ स्टूडेंट्स, रिक्रिएशन मीन्स lakes and rivers are used for fishing and swimming and boating activities. Lakes or rivers में we all know there are fishing, swimming and boating activities are carried out. Okay. Then water amusement parks have swimming pools, water slides and water playground. वाटर अम्यूज़मेंट पार्क में भी हम स्विमिंग पूल, वाटर स्लाइड्स एंड वाटर प्लेग्राउंड होते हैं. तो जहाँ पे ये जो वाटर यूज होता है, ये वाटर आर यूज फॉर रिक्रिएशन. ठीक है. देन फर्दर दिस टॉपिक वी विल डू इन अ नेक्स्ट lecture. Students, try to solve this match the pairs by yourself and read this. Okay. Okay, students. Now, students, I hope the concept of this 4 topic is clear to you. Go through the topic, watch the video once again, and then try to solve the questions given at the back related to this particular topics only. Further topics we will do in our next lecture. Okay, so I am ending this lecture. So take care. Bye.